Hello students. Today I am going to teach you tense. Okay. But before students teaching tense, first of all, you have to know about number, person and case. Okay. So first of all, I am explaining about number, person and case. First see here, just I am writing about person. You know person, how many persons are there in English? How many persons are? 3 persons are. Okay. Which are the 3 persons? You know? Which are? Number 1, what is? First person. Number 1, what is first person? First person, what comes in first person? I and we. What is first person? What is first person? The speaker is called first person. The person who speaks is called first person. Suppose I am speaking, so I am in the first person. If all are speaking, the I here, I am speaking here, I. If all are speaking here, then we all will be, we also will be in the first person. Okay? The speaker of a sentence is called first person. Okay? Number 2 is what is? Second person. Second person. What is second person? The listener in a sentence. The listener in a sentence is called second person. Suppose I am teaching, I first person. You are listening, so you what is? Second person. Okay, the listener, the person who listens, जो व्यक्ति सुनता है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं. जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन में. आई जैसे हो गया और वी हो गया, सभी लोग बोलेंगे तो वी हो जाएगा. लिसनर हो गया, इसमें क्या आता है? सेकेंड पर्सन में यू आता है और फिर हो जाता है दाऊ. यू एंड दाऊ. दाऊ अभी जो चलता है पोएट्री में, दाऊ का मतलब होता है तू, तू, तेरा, है ना, तुझको, इस तरह से चलता है. यू एंड दाऊ. लिसनर हो गया. थर्ड पर्सन हो गया. थर्ड पर्सन. व्हाट इज थर्ड पर्सन? The person or things about whom or which any talk is going on, that is called third person. The person or things about whom or which any talk is going on, that is called third person. जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ के बारे में जो कि बात कर रहे हैं, that is called third person. यानी speaker is called first person. लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन एंड द पर्सन अर्थ जिसके बारे में बात की जाती है. जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस के पार्ट हुए जैसे पर्सन पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो पर्सन हो गया, टेंस हो गया, बुक हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है, जो व्यक्ति बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, सुनने वाला सेकेंड पर्सन. आज जिससे किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है, राम, मोहन, कोई भी चीज़ जो टॉपिक है जहाँ पर, उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं. तो थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट और प्लूरल में आ जाएगा दे. अब बाकी जितना है, बाकी सारी चीज़ें जो है, बुक हो गया, बुक्स, पेन हो गया, बुक, पेन, पेंसिल, जिस चीज़ के बारे में एक्सेट्रा, जिस चीज़ के बारे में हम बात करें, दुनिया की सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें हैं, ऑल दोज थिंग्स कम अंडर व्हाट? Third person. So understood all of you? Person. How many persons are? 3 persons are there. First person, the speaker is called first person. I have not written here definition. Okay. Already see here. Listen this. सुनने वाले को, बोलने वाले को first person कहते हैं. Second person, the listener is called second person. Okay. And the person or thing about whom or which any talk is going on, that is called third person. Clear? Understood that is? What is first person? A speaker, the person who speaks. Second person what is? The listener. Listener means सुनने वाला, जो सुनता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन. और जिस चीज़ के बारे में बात होती है, कोई चीज़ कह रहे हैं, उसके विषय में कोई भी टॉक जहाँ चल रही हो, उसी को कहते हैं क्या? थर्ड पर्सन. क्लियर है? चलिए, नाउ कम हियर नेक्स्ट. दिस इज पर्सन.
Second part, before this, we have to know that is number, person or pronoun. Number is also noun or pronoun. Okay, the number, do you know how many numbers are there? In English, how many numbers are? 2 numbers. In English, 2 number, Hindi 2 number, and Sanskrit 3 numbers are there. इंग्लिश में कौन है? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। हिंदी में क्या है? एक वचन और उसी को क्या कहते हैं? बहुवचन। हिंदी में एक वचन या बहुवचन कहते हैं, और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। संस्कृत में ही जो कि 3 होता है, अन्यथा बाकी सब में 2 ही होता है। समझ में आ रहा है? तो नंबर में कौन हो गया? फर्स्ट हो गया सिंगुलर नंबर। जैसे नाम है, समझिए सिंगुलर, इसको क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एक वचन। क्या कहेंगे? एक वचन। नाम ही है एक वचन, वचन माने नंबर, संख्या। व्हाट इज सिंगुलर नंबर? द नाउन और प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स one and only one is called singular number. The noun or pronoun which denotes one or only one, that is called singular number. वैसा नाउन और प्रोनाउन जो एक और केवल एक को बताता हो, उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर। नाम ही है सिंगुलर, दैट इज सिंगल। ठीक है। सच एज क्या क्या आ सकता है इसमें? जैसे हो गया आई सिंगुलर हो गया। यू ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में आएगा। दाव हमेशा सिंगुलर में रहता है। ठीक है। इसके बाद ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउंस हो गए। और नाउन में कोई भी जो सिंगुलर होगा, नाउन में जो भी केवल सिंगुलर आएगा, एक आएगा। जैसे मान लीजिए पेन हो गया, बुक हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, यानी कोई अकेला, कोई चीज़ एटसेट्रा, है ना, कोई अकेला आएगा उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर। कोई एक होगा उसको सिंगुलर नंबर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, सेकेंड वन इज व्हाट इज? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर जिसका नाम है प्लूरल, बहुवचन, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में जैसे आप लोग पढ़ते होंगे बहुवचन, जो बहुत को बताता है। द नाउन और प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स 2 or more than 2. The noun or pronoun which denotes 2 or more than 2 is called plural number. वैसा नाउन और प्रोनाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 भी हो गया तो भी प्लूरल हो गया। 2 से ज़्यादा जितनी है, 2, 4, 10, 20 जितनी आएगी, सबको जो हमको प्लूरल नंबर में रखेंगे। ठीक है। तो प्रोनाउंस में कौन कौन प्लूरल नंबर में आते हैं? तो फर्स्ट पर्सन जैसे हम बताए थे वहाँ पर वी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन में यू दोनों में आता है। थर्ड पर्सन में क्या हो गया? दे हो गया। वी, यू, दे। इसके बाद नाउन में देखिए क्या लिखे हैं? बॉय का बॉयज हो गया। पेन लिखे हैं तो पेन का हम प्लूरल पेन्स बना देंगे। बुक है तो बुक का प्लूरल क्या कर देंगे? बुक बनाएंगे, एक्सेट्रा। जिसमें एक से ज़्यादा हो, एस लगा हुआ हो। कुछ दूसरे होते हैं, जैसे मैन है तो मैन का मेन बना सकते हैं। ठीक है। चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा। डिफरेंट when you are reading, will you read nouns, then you will understand in that. Okay, how to make singular plural, I think you know all of them. Okay, so understood this is singular number and plural number, both of them are clear. Now I am making one chart, okay, and by means of chart, number and person, both I am writing in one there. Okay, now come here in chart here. By means of this chart, it is very much important. It is not only important for reading tense, but it will be important for reading voice also, narration also. Without this understanding, your concept will not be clear. Okay. So here one chart I am making here, singular number. Here I am writing singular. You have to note down singular number. And here I am writing this side plural number. Plural number. Singular number and plural number. See this. 3 persons I have taught 3 persons. See the person and number, सबको पर्सन और नंबर दोनों को एक साथ जो एक टेबल में
इसको मैं कर रहा हूँ। हियर विल बी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर क्या हो गया सेकेंड पर्सन, ये टेबल हो गया फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, और तीसरा हो गया थर्ड पर्सन। यू हैव टू नोट डाउन देम। अब क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या होता है? तो जैसे हम पढ़ाए थे पर्सन में, तो सिंगुलर नंबर हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, और प्लूरल नंबर में क्या आता है, वी आता है। कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इज आई एंड प्लूरल नंबर इज वी। ओके, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर व्हाट इज यू एंड दाऊ। दाऊ का मीनिंग होता है तू, पोएट्री में आता है, इसे लिखने में इसका यूज नहीं होता, पोएट्री जब आएगा ओल्ड वर्ड है, ठीक है, तो इसमें जो दाऊ आएगा। और सबका ये प्लूरल क्या हो जाएगा, यू, यानी यू वहाँ भी है और यू यहाँ भी है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आएगा, जो अकेला हो, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, यानी कहने का मतलब क्या है, एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, अकेला नाउन आ जा इसमें जो है, तो सब जितने हैं सिंगुलर नाउन, जितना नाउन किसे कहते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, आँख से जो भी हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ टच कर जाए, आँख, कान, नाक, जहाँ भी जो भी चीज़ें टच कर जाए, हमारी फीलिंग्स हो, कुछ इमोशंस हो, थिंकिंग हो, थॉट्स हो, वो सारी स्टेट ऑफ माइंड हो, जो भी चीज़ें हैं वो सब जो है नाउन में आता है, ठीक है। तो ऑल नाउन्स हो गया। और प्लूरल नंबर में सबका क्या आएगा, दे। इसके बाद बॉयज लगा दीजिए, बॉयज, गर्ल्स, हैं, या एनी प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन हो, एनी प्लूरल नाउन, ठीक है, कोई भी प्लूरल नाउन जितना है ये सारा इसमें आ जाएगा प्लूरल नंबर में। तो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो आई विल आस्क यू व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, देन यू हैव टू टेल आई। सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू एंड दाऊ, एंड प्लूरल नंबर यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, और एनी सिंगुलर नाउन, ओके। and plural number they, all they will be here, and boys, girls, or any plural noun, कोई भी plural noun हो, एक से ज़्यादा हो, इसमें आ जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर इज व्हाट इज केस। मैं इरेज दिस, इरेज कर सकते हैं। आइए देखिए ध्यान से, केस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। विदाउट नोइंग केस, this will also help in some other parts there. They are the basic thing, basic concepts are this in here. So then here will be case. Case means, do you know, कारक, okay, जो एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से आए हुए सेंटेंस में उसको क्या बताते हैं, संबंध दिखाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती है उसमें केस होता है, कारक होता है। तो in English only 4 cases are there. Out of 4 cases, only 3 are important. Vocative case, last one is vocative case, that is not so much important in there, and forms of pronouns are also not changed in them. Okay. So here cases are 3. First number, what are the 3 one? Number first is, that is called nominative case. Nominative. Nominative case, or its other name is, students, subjective case. Subjective case, ध्यान दीजिएगा, नेम जो है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट आप लोग समझे होंगे, सब्जेक्ट क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव केस यानी इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। देखिए नाम कैसे है, कर्ता कारक, कर्ता कारक जो सब्जेक्ट का काम करता है। द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जितने नाउन प्रोनाउन हैं सब्जेक्ट की जगह पाएगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कर्ता, जो करने वाला होता है, डूअर होगा, जो भी करने वाला होगा, जो भी चीज़ हो गया, यानी मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले जो है जो भी करने वाला होगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे उसको जो है।
ठीक है। द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. I think there is no need of writing this definition. I am just explaining this. The noun or pronoun which is used in place of subject, that is called what is subjective case. Is there need? अगर need हो तो अब मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए. The noun और pronoun, इसलिए दे रहे हैं. The noun और pronoun which is used in place of subject. The noun or pronoun which is used in place of subject is called nominative case or subjective case. Nominative case, or its other name I have written there, na, subjective case. Okay. द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. देखिए नाम, देखिए इसका डिफिनीशन देखिए. वैसा नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द डूअर ऑफ ए सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में जो करने वाला होता है, यानी मेन वर्ब से पहले यूज होता है, जिसके अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो. ठीक है. जैसे सच एज, एग्जाम्पल देखिए. सच एज I teach you English. I teach you English. ध्यान से देखिएगा. Who is teaching you English? कौन टीच इंग्लिश कर रहा है इस सेंटेंस में? What is the subject? काम कौन कर रहा है? Who? I. काम कौन कर रहा है? I कर रहा है. और देखिए I के ही अनुसार जो है टीच. I का एक्शन क्या है? एक्शन माने वर्ब, काम. एक्शन मीन्स काम. आई कौन काम कर रहा है? टीच का काम कर रहा है. टीच का काम कौन कर रहा है? तो आई. तो आई चूंकि पढ़ा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे सब्जेक्ट. और जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो इसी को कहेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस. देखिए यहाँ वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले जो ही आया हुआ है यहाँ पर, ये वर्ब से टीच जो है एक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब हो गया. ठीक है. वर्ब में भी ये मेन वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया. फाइनाइट वर्ब क्या है? जिस वर्ब का टेंस होता है, जिस वर्ब का क्या होता है? टेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं. ठीक है. तो पहले समझिए, ये जो है वर्ब है, आई सब्जेक्ट, आई काम कर रहा है. आई का काम क्या है? टीचिंग करना. तो ये वर्ब हो गया. अब देखिए इस वर्ब को रिसीवर यानी डूअर, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? डूअर. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर. DOER. डू मीन्स करना, ER लगा दिए, नाउन बन गया. डू मीन्स क्या हो गया? करना, और ER लगा दिए, क्या बन गया? नाउन बन गया. नहीं, डूअर माने करने वाला. यानी जो सेंटेंस में करने वाला होता है, यानी जिसके अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट को पहचानना क्या है? आप देखेंगे किसी या तो क्लॉज हो या सेंटेंस हो, ध्यान से देखें, कोई भी जहाँ से शुरू होता है वर्ब से ठीक पहले वाला होता है, जिसके अनुसार वर्ब का यूज होता है, उसी को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. और इसके एक्शन को कौन काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा? वर्ब. वर्ब का जैसे डिफिनीशन ही है एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड. जो काम करता है डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है, उसी को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे. ठीक है. अब वर्ब को रिसीव करने वाला क्या है? यहाँ देखिए टीच. टीच का इफेक्ट कहाँ जा रहा है, किस पर है? तो दो चीज़ दिया हुआ है. अगर इसको अलग अलग करेंगे, आई टीच यू, यहाँ से भी एक सेंटेंस बन जाएगा. आई टीच इंग्लिश, दो चीज़ बन जाएगा. व्हाट और होम. ऑब्जेक्ट पहचानने का, रिसीवर पहचानने का दो तरीका होता है. कैसे? व्हाट और होम. जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो इनएनिमेट चीज़, निर्जीव चीज़ होगा, तो व्हाट का आंसर आएगा. और कोई व्यक्ति होगा, उससे किससे क्वेश्चन करेंगे? होम से. होम माने किसको, किसको पढ़ाया जा रहा है? तो यू को, यू को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जो है. तो जो रिसीवर है टीच, टीच का प्रभाव किस पर पड़ा? रिसीव कौन कर रहा है? ये रिसीवर हो गया. रिसीवर दो है यहाँ, ये भी रिसीवर है, ये भी रिसीवर है, तो दोनों हो गया. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट में कौन हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या कहते हैं इसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट, देखिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. 5 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. इसमें जो है दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? द ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. जो ह्यूमन बींग्स से समझ, आई वी
जितने आएंगे ये सारा जो है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी का जो फॉर्म चलेगा। और इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट जो है वस्तु से संबंधित है, निर्जीव चीज से, इनएनिमेट थिंग, लाइफलेस थिंग से जो चीज़ें हैं जिसमें जान नहीं है, पेन, पेंसिल, बुक, जो भी चीज़ें हैं, इसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिमाग में रखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो गया। द ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू थिंग्स और इनएनिमेट थिंग दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग समझा रहे थे आपको कि ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो हियर टू रिसीवर्स आर देयर। फर्स्ट रिसीवर इज यू एंड सेकेंड रिसीवर इज इंग्लिश। जैसे इनएनिमेट चीज, दोनों को अलग अलग करेंगे तो दो तरह का सेंटेंस बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट जानने का तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट एंड हुम। इसको जानने के लिए, इनएनिमेट चीज को जानने के लिए क्या करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। और जो लाइफलेस जैसे ह्यूमन बीइंग है उसको करेंगे हुम से क्वेश्चन करेंगे। हुम से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब से ठीक पहले आता है, वर्ब से ठीक बाद, सॉरी, वर्ब से ठीक बाद आता है। जो मेन वर्ब होगा, है ना, फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब से ठीक बाद में आएगा जो है। ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए टीच है, टीच का रिसीव ये कर रहा है, ये भी रिसीव कर रहा है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। यानी जो भी वर्ब से पहले आएगा समझिए कि नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस कुछ भी आ सकता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो ठीक इससे पहले आएगा वो समझेंगे कि वो क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, मे आई रीड दिस? ओके। नाउ सेकेंड वन, सी इज दिस ईयर, यू हैव टू नोट डाउन ऑल ऑफ देम। सेकेंड सी ईयर केस कैसे समझेंगे? सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, जैसा नाम ही है, देखिए ध्यान दीजिए इसका, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव बन गया। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव केस। इसको कहते हैं कर्म कारक, जो अभी जो पढ़ा है आपको, है ना, कर्म, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस? द नाउन और प्रोनाउन। व्हाट डिफिनेशन विल बी? द नाउन और प्रोनाउन, the noun or pronoun which is used in place of object, in place of object, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, is called what is objective case, is called in कर दे, in called in objective case। इसको ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। जो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा, यानी वर्ब से ठीक बाद में आएगा, जो बता रहे थे पहली बार। ठीक है, वर्ब से ठीक बाद में आएगा, उसी को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। सच एज, जैसे देखिए कुछ का होता है ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, जैसे यू का हो गया। ठीक है, नाउन का केस नहीं चेंज होता, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम रहेगा। तो भाई पहचानेंगे कैसे? दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि नॉमिनेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है। तो उसके प्लेस से अगर सब्जेक्ट के जगह पर आ रहा है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो नॉमिनेटिव हो जाएगा, और ठीक मेन वर्ब के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यू टीच मी, टीच वर्ब से ही ले रहे हैं, यू टीच मी, ध्यान दीजिए केवल यू टीच मी लिखे हुए हैं। व्हाट इज द डूअर? नॉमिनेटिव केस क्या है? इसमें चुनना होगा। मान लीजिए सेंटेंस में आ गया कि जस्ट सेलेक्ट चूज हियर नॉमिनेटिव प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसमें नॉमिनेटिव केस में क्या आया? यू आ गया, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। एक्शन को रिसीव करने वाला कौन हो गया? मी। एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? मी, यानी ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। किस केस में ये ऑब्जेक्ट आ गया? ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ, द नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए डिफिनेशन जो लिखे हैं इसमें, वैसा नाउन प्रोनाउन, नाउन भी आ सकता है, अभी तो यहाँ प्रोनाउन लिखे हैं। नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के जगह पर आता है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पर यू जो है क्या है? नॉमिनेटिव केस है। अब इसी को मैं लिखूँ कि सी टीचेज यू, सी टीचेज यू, ध्यान दीजिए
सी टीचेज यू, सब्जेक्ट क्या है, सी है। जो भी सब्जेक्ट होगा, एक ध्यान दे देना है, कौन पढ़ाने का काम कर रहा है, तो सी। तो सी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। इसका एक्शन क्या है, टीच है, तो ये वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड उसका। अब देखिए यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि यूज चूँकि सर सब्जेक्टिव केस हो गया सब्जेक्ट जगह पर, फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ये क्यों आया, व्हाई दिस हैज कम, बिकॉज इट इज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर नहीं, देखिए पहला सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर था, इसलिए क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। और यही यू जो है यहाँ वर्ब के बाद आ रहा है, रिसीवर बन गया। यहाँ ये डूअर था, यहाँ ये डूअर है, ठीक है, इसलिए जो है नॉमिनेटिव केस हो गया। और यहाँ पर देखिए डूअर नहीं है, ये करने वाला नहीं है, क्या है, रिसीवर है, RECEIVER, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये करने वाला नहीं है। टीचिंग हो रहा है, किसको टीचिंग किया जा रहा है, यू को, इसलिए हो गया ये ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यही दिमाग में रखना है। अब देखिए नाउन का, ये क्लीन कर दें इसको, आइए डिफिनीशन क्लीन करते हैं। देखिए रब करते हैं इसको, जो नाउन को देखिए ध्यान से, सीता टीचेज गीता, ध्यान दीजिए नाउन में सीता टीचेज गीता, हमको देखना है सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, दो केस को ध्यान देना है, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। कौन पढ़ा रही है, सीता, इसलिए सीता सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। किसको पढ़ा रही है, गीता को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब गीता क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो नाउन का केस नहीं चेंज होता है, ये नहीं कि जैसे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जैसा ये केस नहीं है। जैसे अगर इधर लाते हैं, फिर लिख दीजिए गीता को, अगर गीता को लिखेंगे तो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही होगा, गीता टीचेज सीता, गीता टीचेज सीता। देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में बदल कर लाए, ये ऑब्जेक्टिव केस जो गीता थी ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसको हम सब्जेक्ट बना दिए। अब गीता क्या कर रही है, डूअर है, गीता यहाँ करने वाली हो गई, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बन गया, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी नाउन का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दोनों सेम रहेगा। तो गीता टीचेज सीता, आप देखिए सीता नॉमिनेटिव थी यहाँ, यानी सब्जेक्टिव केस, यहाँ आकर क्या बन गई, ऑब्जेक्टिव केस बन गई। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन उसमें चेंज नहीं हुआ, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। तो ध्यान देना है कि द केस ऑफ नाउन इज नॉट चेंज्ड, इन नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव सेम इज देयर, but in possessive, when you have to make possessive case, that will be changed. We can make possession, that is by means of using what is of or apostrophe s. Apostrophe s are of. So it is clear here. Okay. Now come here third one. Third one will be here. थर्ड वन इज पॉजेसिव केस, POSSIV, पॉजेसिव केस। इसका हिंदी जानते हैं, संबंध कारक, संबंध कारक, जो कि पॉजेशन बताता है या रिलेशन बताता है ना। द नाउन और प्रोनाउन व्हिच शोज पॉजेशन और शोज रिलेशन विथ सम अदर nouns and pronouns coming in the sentence, that is called what is possessive case. What is possessive case? The noun or pronoun which shows relation, the noun or pronoun which shows relation or possession, which shows relation or possession is called what is possessive case. इसका नाम ही है संबंध कारक, जो संबंध दिखाएगा, पोजीशन अधिकार भी दिखाता है, ठीक है, पोजेस भी करता है, अधिकार भी दिखाएगा। वैसा नाउन और प्रोनाउन जो दूसरे आए हुए नाउन और प्रोनाउन के साथ सेंटेंस में जब आएगा तो उसको या तो पोजेस करेगा या
रिलेशन बताएगा, उसका जो है संबंध बताएगा, उसी को क्या कहेंगे, पॉजेसिव केस कहेंगे। सच एज, पॉजेसिव केस में क्या होगा, सच एज, नाउन प्रोनाउन का केस तो वही ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस से बनाते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल में है क्या, और उसको हम लिखवाएंगे पॉजेसिव केस में क्या क्या आएगा, पर सेंटेंस एग्जाम्पल से देखा जाए। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, ध्यान से सुन, देखिए आप, यू आर माई स्टूडेंट, हु स्टूडेंट, माई स्टूडेंट, किसका स्टूडेंट, तो माई स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट। यहाँ माई जो है स्टूडेंट को साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, किसका स्टूडेंट, तो माई स्टूडेंट, एक रिलेशन बन रहा है। दिस इज माई स्कूल, ये किसका स्कूल है, मेरा स्कूल है, ये पोजीशन हो गया, किसका स्कूल है, मेरा स्कूल है, माई या पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है। इसी तरह से माई, योर, हीज, हर, जितने हैं उसका जो केस चेंजिंग होगा ये सारे जो है क्या करेंगे, पोजीशन दिखलाएंगे, ठीक है। नाउन का कैसे करेंगे, दिस इज राम्स हाउस, दिस इज राम्स, दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। अब देखिए राम में एपोस्ट्रोफी एस लगा दी, दिस इज राम्स हाउस। इसी को कैसे कर सकते हैं, दिस हाउस इज ऑफ राम, ऑफ लगा करके, इसी का मीनिंग सेम होगा। और देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस, क्या पढ़ते हैं इसको, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी के यूज कहाँ कहाँ होता है, ह्यूमन बीइंग और भी निजी के साथ भी होता है, लेकिन ज़्यादा कम होता है। जितना जो है प्राणीवाचक सूचक हैं और सब है, इसका यूजेज है ह्यूमन बीइंग के साथ तो मोस्टली जो है यूज होता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उसको जो है एपोस्ट्रोफी जब पोजीशन दिखाएंगे तो उसको क्या करेंगे, ऑफ से बनाते हैं। इसी को कैसे कर सकते हैं, दिस, दिस हाउस इज ऑफ राम, देखिए मीनिंग सेम हुआ, दिस हाउस इज ऑफ राम, यह राम का घर है, और दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। तो यहाँ एपोस्ट्रोफी राम का, एपोस्ट्रोफी लगाते मीनिंग होता है का, ऑफ भी लगता है ठीक यहाँ पर, कहाँ पर, ये प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले लगता है, तब उसका रिलेशन जो है संबंध क्या करता है, उसको दिखाता है। यह राम का घर है, ये जो है ऑफ लगाकर, और दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है, इसमें भी ऑफ लगाकर, ये एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाते हैं और इसमें ऑफ लगाकर, तो मीनिंग सेम होगा, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए अब आप लोगों के टेबल के माध्यम से कैसे चेंज होता है, यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस, नो प्रॉब्लम आई थिंक। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, बाय मीन्स ऑफ द टेबल you have to learn all of them and see how the different cases are changed into different parts there. So how many cases I have written here? 3 most important cases. Vocative case, vocation is just like you have to address anyone, oh Ram, just like this, Mohan come here. So if you are addressing anyone, that is called vocative, है ना, संबोधन, जिसको संस्कृत में पढ़ते होंगे संबोधन कारक है, ओ अरे, जिस तरह से करते हैं उसी को क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम 3 केस में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैसे चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेटिव, ये बहुत टेबल इम्पोर्टेंट है। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, और इसको कहेंगे सब्जेक्टिव। क्या नाम पढ़े हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। यहाँ बीच में हो जाएगा 3 टेबल, देखिए ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और थर्ड वन क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस। तीनों केस में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजेसिव केस में क्या होता है कि ये 2 भाग में बंट जाता है। एक क्या हो जाएगा, पहला पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या होगा, हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप पूछ सकते हैं कि सर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए चूंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव, द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए नाउन आर
प्रोनाउन। वैसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो जो कोई भी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो ठीक उसके बाद नाउन आना जरूरी होगा। और चूंकि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वैसे वर्ड जो नाउन के बदले में आते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट, प्रोनाउन। इसका मतलब कि प्रोनाउन विल कम एलोन। जब नाउन होगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन होगा तो नाउन नहीं आएगा। दोनों कट्टर, दे आर द स्टॉन्च एनिमीज, एक दूसरे के एनिमी है। क्योंकि डिफिनीशन है द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के जगह पर नाउन जब हटेगा तब प्रोनाउन आएगा। नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, जैसे राम ही, इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों जो है अलग अलग रहेगा। तो इसमें अंतर क्या होगा, प्रोनाउन विल कम एलोन बट एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव विल कम जस्ट बिफोर नाउन, यानी नाउन इज मस्ट आफ्टर दैट, यही अंतर है। अब देखिए यहाँ पर पर्सन जो है आप लोगों को लिखे थे, तीनों सब पर्सन और नंबर सब आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर्सन पी से पर्सन समझिएगा। सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लिखे थे, आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। यानी देखिए ऑब्जेक्टिव केस का साइन क्या हो गया, को, कर्ता ने। यहाँ कर्ता ने क्या हो गया, ने, इसको ने चिन्ह हो गया, मैंने। ऑब्जेक्टिव केस मी, मुझको, ठीक है। और पॉजेसिव केस हो गया मेरा, मी, माई और माइन। मीनिंग इज द सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग। मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है, माई और माइन, लेकिन यूज में अंतर रहेगा, ठीक है। तो आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई एंड पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। नाउ फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का आई था, ध्यान से देख लीजिएगा जो लिखे हैं। फर्स्ट पर्सन में ही ये रहेगा प्लूरल नंबर, वी। आप लोग देखे होंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में। इसका रूप कैसे चलेगा, अस, हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आवर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर्स, आवर एंड आवर्स। अंडरस्टैंडिंग, वी, अस, आवर एंड आवर्स। फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू, एक पहला बताए थे यू, तो यू का नॉमिनेटिव और पॉजेसिव दोनों, ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही रहता है, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, यू एंड यू ही रहेगा। दोनों को पहचानेंगे भाई कैसे कि ये नॉमिनेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है, हाउ विल अंडरस्टैंड दिस, हाउ विल रिकॉग्नाइज दिस। तो यू कैन रिकॉग्नाइज इट बाय मीन्स ऑफ यूज। अगर ये यूज वर्ब से ठीक पहले आ रहा है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, एंड इट कम्स जस्ट आफ्टर वर्ब। अगर वर्ब के बाद आएगा, यानी रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कोई जो एक्शन हो रहा है ठीक इसको रिसीव करेगा, तो दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, योर, और यहाँ हो जाएगा योर्स, ये अकेले आएगा योर्स, ठीक है। फिर एक लिखे थे आपको दाव। दाव का मतलब हो गया तू, दाव मीन्स तू, ठीक है। दाव के बाद क्या आएगा, दाई, THY, दाई माने हो गया तेरा, है ना, दाई, दाई नहीं, सॉरी सॉरी नॉट दाई, दाव, दी, ठीक है, THEE, दी। क्या पढ़ेंगे इसको, दी पढ़िएगा। देखिए दी यानी तुझको, तुझको को चिन्ह हो गया, दाव दी। यहाँ देखिए दाई, दाई माने हो गया तेरा, और दाइन, दाइन का भी मीनिंग हो गया तेरा, इसका भी मीनिंग तेरा है, इसका भी मीनिंग देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग बट देयर इज डिफरेंस इन यूज। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यूज में डिफरेंट है ये। तो सेकेंड पर्सन क्लियर किया, यू एंड दाउ। नाउ कम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में देखिए क्या था, सिंगुलर में वाला ही था, ही का कैसे रूप चलेगा, ही, हिम, याद है। और यहाँ क्या हो जाएगा, हिज होगा, और यहाँ भी क्या होगा, हिज ही होगा। ही, हिम, हिज, हिज, यानी पॉसेसिव प्रोनाउन में भी ही जाएगा और पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी ही जाएगा। फिर हो गया सी। सी के लिए क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर, और पॉसेसिव केस में भी ऑल्सो हर। सी, हर, हर, और यहाँ हो जाएगा हर्ष, सी, हर, हर, हर्ष। फिर प्लूरल में था ईट,
सॉरी अभी सिंगुलर में है ना। ईट, ईट क्या ध्यान दीजिए, ईट, ईट, यहाँ भी ईट, यहाँ भी ईट, यूज के आधार पर पहचानेंगे। और यहाँ हो गया ईट्स पॉसेसिव एडजेक्टिव में, और पॉजेसिव प्रोनाउन में कुछ नहीं आता है। और लास्ट हो गया दे, तो दे का चलेगा दे, देम, देयर एंड क्या देयर्स। दे, देम, देयर और देयर्स, तो आपको पहचानना होगा कैसे कैसे रूप चल रहा है, क्या है। सबको जो देखिए ऑल आर द प्रोनाउंस, सारे जो है प्रोनाउंस हैं, पर्सन्स हैं। इस सारे पर्सन्स का रूप कैसे कैसे चल रहा है। आई का आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स, दाऊ, दी, दाई, दाइन, ध्यान से देंगे इसको जो है। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, हिज। सी का हो गया हर, हर, हर्स, ईट, ईट, ईट्स और ईट, वहाँ प्रोनाउन में नहीं होगा। दे का हो गया दे, देम, देयर और देयर्स। ये सारे जो है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर द प्रोनाउंस चेंजिंग, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर टेंस हियर बट ऑल्सो फॉर voice, narration, whenever you are reading, and recognizing all the pronouns in a sentence. If it comes there, find out all the pronouns there, then you have to find out all of them pronouns there. Okay, so I think you have to first of all, students, before coming to the tense teaching, next part I will make video of tense there, directly will come on the tense. Okay, but before that you have to memorize all of them. I will ask that what is number, how many numbers are there, how many persons are there, and how many cases are there, and first person singular number what is subject, plural number subject, second person singular subject, plural subject, third person singular, third person plural. All these must be in your mind, only then we will proceed to next tense. Okay, so I hope you will prepare all these things, you will memorize all of these things. Okay, with this, thank you, good night.